ربیع نگرامی ایک مصنف کو، ایک مؤلف کو، ایک مقالہ نگار، ایک مضمون نگار کو تصنیف و تالیف کے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، میں اس کے تعلق سے صرف 2-4 چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ نمبر 1 اخلاص۔ آج جو مصنفین روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، کوئی دولت جمع کرنے کی ہوڑ میں تصنیف کر رہا ہے، کوئی جاہ و منصب حاصل کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی شہرت طلب کرنے کے لیے مشہور ہونے کی خاطر کتابیں لکھ رہا ہے، مگر کامل مصنف وہی ہے جو تصنیف و تالیف کا صدرش کے کام کا انجام بھی دے تو اخلاص و للہیت کے ساتھ انجام دے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے انجام دے۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر رضا الہی مقصود و منشود نہ ہو تو پھر یہ تصنیف و تالیف کا کام اس پر اسے ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ تصنیف، یہ تالیف بھی کل قیامت کے دن اس مصنف کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ حدیث سنیے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ دکھاوے کے لیے، شہرت طلب کرنے کے لیے، ریا اور سمعہ کے طور پر کوئی اگر نماز بھی پڑھتا ہے وہ عبادت نہیں، وہ شرک خفی ہے، اس پر ثواب نہیں ملتا بلکہ اس کے نام اعمال میں گناہ مندرج ہو جاتے ہیں۔ اور فرمائے وہ من صام یرائی فقد اشرکا، دکھاوے کے لیے روزہ بھی رکھے نہ تو وہ بھی شرک خفی ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ کرے ثواب نہیں ملے گا، شرک خفی ہے، ایسا انسان گناہگار ہو جایا کرتا ہے۔ یہی حال ہے تصنیف و تالیف کا، اخلاص و للہیت کی حاجت۔ دوسری چیز جو تصنیف و تالیف میں ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اور مؤلف کو تصنیف و تالیف سے پہلے استخارہ بھی کر لینا چاہیے۔ حالانکہ آج یہ تقریباً ناقص ہے، ہمارے علماء یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور جب موڈ میں آتا ہے تو پھر اٹھاتے ہیں قلم اور جلدی سے لکھ مارتے ہیں، حالانکہ استخارہ کر لینا چاہیے۔ حضرت علامہ شیرازی کے بارے میں لکھا کہ علامہ شیرازی جب فقہ کی کوئی کتاب لکھتے تو پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد استخارہ کرتے، جب رب کی جانب سے اجازت آتی تب جا کر کے وہ مسئلہ اپنی کتاب میں درج فرما۔ ایک مسئلے کے لیے 2 رکعت نفل نماز اور ہر مسئلے کے لیے استخارہ کا عمل۔ اور امام ابن جریر طبری کے بارے میں آیا کہ جب وہ اپنی کتاب تفسیر طبری لکھنے کا ارادہ کیے تو امام ابن جریر طبری ایک کمرے میں تشریف لے گئے اور جا کر کے دوگانہ انہوں نے نماز ادا کی، نفل کی، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد امام ابن جریر طبری نے رب کی مرضی تلاش کی کہ اللہ کی کیا رضا ہے کہ میں تفسیر کی کتاب لکھوں کہ نہ لکھوں۔ استخارہ کیا، اور پھر استخارہ کے بعد جب رب کی جانب سے اجازت آئی تب امام طبری نے تفسیر طبری لکھی۔ امام بخاری کے بارے میں مشہور ہے، ہمارے اکثر علماء جانتے ہیں کہ جب وہ کسی حدیث کو صحیح بخاری میں درج فرماتے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، پہلے تو تازہ غسل کرتے، تازہ وضو کرتے، خوشبو ملتے اپنے جسم پر، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، پھر استخارہ کرتے اس حدیث کو بخاری میں شامل کروں کہ نہ کروں۔ جب رب کی اجازت آتی، اس جانب سے حکم آتا، تب اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج فرماتا۔ تو یہ استخارے کا بھی عمل پہلے جاری تھا، اور تصنیف و تالیف سے پہلے استخارہ کیا جاتا تھا۔ حالانکہ آج وہ چیز ناپید ہو چکی ہے، نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری بنیادی چیز تصنیف و تالیف کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ طباعت میں، کتاب کو چھاپنے میں جلدی نہ کرنا۔ آج تو جلدی مصنف بننے کے چکر میں ہمارے بہت سارے مصنفین یوں قلم اٹھایا، درد جو آیا من میں لکھ ڈالا، نظر ثانی کی بھی کوشش نہیں کی، دوبارہ نگاہ بھی ڈالنے کی کوشش نہیں کی، چھپا دیا۔ اور بہت سارے وہ کام جو کسی تنظیم کے تحت کسی کے ذمے پہ ڈالا جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تنظیم والے، وہ ارکان، وہ کمیٹی والے، ان کی جانب سے اتنے پیغام تقاضے ہونے لگتے ہیں کہ مصنف بھی گھبرا جاتا ہے، یاد کرنا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس
सन्नफ्त कुतुबी सलासा मर्रात। इमाम बुखारी ने कहा मैंने अपनी तमाम किताबें एक बार नहीं बल्कि 3 बार लिखी। मैंने एक बार लिखा, फिर नजर सानी की, हस्फ इजाफा की मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैंने घटाया बढ़ाया, फिर दोबारा बढ़ा, फिर घटाया बढ़ाया, फिर बढ़ा, फिर घटाया बढ़ाया, और इस तरह से 3 मरहले में इस्लाह कामिल के बाद तब वो किताब पर इसके हवाले की जाता है। मुझे याद आ रही है एक बहुत बड़े इमाम है, नाम है उनका इमाम मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी फिक़्ह की एक किताब है, किताब का नाम है अल मुख्तसर फिल फिक़्ह। उस किताब के मुक़द्दिमे में अल मुख्तसर फिल फिक़्ह के बारे में उन्होंने लिखा अल्लफ्तुहु सलासा मर्रात व गय्यरतुहु। मैंने इस किताब को 1-2 बार नहीं 3 बार लिखा है और हर बार मैंने कुछ हस्फ इजाफा किया। जब पढ़ के देखा तो महसूस हुआ कि ये घटाना चाहिए, यहाँ बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से मेहनत करने के बाद तब किताब मंजर आम पे आती है। और हमें तो लगता है कि शायद वैसे ही किताब प्रेस भेज दे, छप करके आ जाएगी, जिम्मेदारी खत्म है। आप देखिए इमाम बुखारी जैसे जलीलुल कदर इमाम अपनी किताब को 3 मरतबा चेक करने के बाद तब प्रेस के हवाले कर रहे हैं। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, रईसुल कलम हजरत अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान। अल्लाह ने उनकी तहरीर में बला की जाज़बियत अता फरमाई, बला की कशिश थी। जो पढ़ता उनकी किताब को ना तो हाथों में उठाने के बाद फिर लगता नहीं था कि यार किताब छोड़ दे, खाना छूट जाए वो बर्दाश्त है, मगर किताब हाथ से न जब पाए, पहले इसका मुताला हो जाए। और इसके मोतरिफ सिर्फ हमारे उलमा अहले सुन्नत नहीं है, बल्कि देवबंदी वहाबी तबके में चले जाइए, वो लोग भी अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहरीर की जाज़बियत के मोतरिफ है। मानामा तजल्ली का जो एडिटर था उसने साफ तौर पर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा की किताब ज़लज़ला के बारे में लिखा कि इस किताब को पढ़ करके तो कुछ और लगने लगा है। हाँ, उसने सिर्फ एक जगह कहा कि नाम से मुझे समझ में नहीं आया कि ज़लज़ला नाम क्यों रखा है, मगर अल्लामा ने जो ज़लज़ला रखा था ना वैसे नहीं रखा था कि क्योंकि पूरी वहाबियत और देवबंदियत की जो इमारत थी उसमें ज़लज़ला और भूचाल आने वाला था, इसलिए आपने किताब का नाम रख करके उस जानिब इशारा फरमा दिया। उनकी तहरीर में जो इतनी जाज़बियत आई, पता है कहाँ से आई? इतनी दिलकशी कहाँ से आती थी? इतने अच्छे जुमले कहाँ से होते थे? इतने बेहतरीन मुख्तफात कहाँ से होते थे? पता है, हमको तो लगता था कि शायद वो अपना कलम उठाते और दौड़ने से लिख देते थे। नहीं, अल्लामा अरशदुल क़ादरी से जब पूछा गया वो फरमाते कभी कभी मैं अपनी तहरीर को 10 बार काटता हूँ तब जाकर के अल्लाह उसमें इतना हुस्न पैदा करता है। वैसे ही हुस्न नहीं आता कि कलम उठाया लिख मारा। हाँ, कुछ नफूस कुदसिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात को भी अल्लाह ने अता किया है। देख लीजिए ताजदार बरेली को सिर्फ 8 घंटे की मुद्दत कलीला और उसी मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह दौलतुल मक्किया लिखी तो इतनी शानदार लिखी, न तो मुआफ़िकीन को एक हर्फ पढ़ाने की जसारत हो रही है, न तो मुखालिफीन को एक नुक्ते से इनकार करने की जसारत हो रही है। लेकिन वक्त तो चाहिए हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, अक्सर लोगों के लिए वक्त चाहिए। मैं थोड़ी सी एक फहरिस्त पेश कर दे रहा हूँ तब जाके समझ में आएगा कि तसरीफ और तालीफ में कितना वक्त लगता है। आपने किताब का नाम खूब सुना भी है, पढ़ा भी है। किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मालिक। पता है कितने साल में मुकम्मल हुई? इमाम मालिक ने मुअत्ता इमाम मालिक को 40 साल की मुद्दत कसीरा में जाकर के पूरी फरमाई। 40 साल मेहनत करने के बाद मुअत्ता इमाम मालिक मुकम्मल हुई है। इमाम उबैद कासिम बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताब है गरीबुल हदीस। गरीबुल हदीस को इमाम अबू उबैद कासिम बिन सलाम ने 40 साल में मुकम्मल फरमाया। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की किताब है अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा। इस किताब को भी इमाम इब्न हजर अस्क़लानी जैसे मुहक्किक ने 1-2 नहीं 40 साल में मुकम्मल फरमाया। इमाम इब्न आशूर की किताब है तफसीर तनवीर व तहरीर। तफसीर की इस मायनाज किताब को हजरत इमाम इब्न आशूर ने 40 साल की मुद्दत में मुकम्मल फरमाई। 40 साल में किताब मुकम्मल हो और यहाँ पर 2 साल लग जाए, यहाँ पर 2 महीने लग जाए, यहाँ पर 2.5 साल लग जाए तो चारों तरफ से वावेला शुरू हो जाता है। यार कर रहे हैं लोग, सो तो नहीं रहे। जरा इन हालात
लगाइए और फिर देखिए, इंसान की निगाह से देखिए कि एक तसनीफ और तालीफ में वक्त कितना लगता है। 40 साल की मुद्दत इन किताबों की तसनीफ में लगी। और सुनिए, आप जानते होंगे इमाम इब्न अब्दुल बर को, इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब है अत-तमहीद लिमा फिल मुवत्ता मिनल मआनी वल असानीद। इस किताब की तसनीफ में इमाम इब्न अब्दुल बर जैसे मुहक्किक को 1-2 साल नहीं बल्कि कामिल 30 साल लगे। 30 साल की मुद्दत में इन्होंने अत-तमहीद नामी किताब को पाए तकमील तक पहुंचाया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब बड़ी मशहूर मारूफ किताब है फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी। हमारे उलमा फुक़हा उस किताब का हवाला देते हैं, उसकी इबारतें नकल करते हैं। ताजदार बरेली ने फतावा रज़विया में जा बजा उनकी इबारतें नकल फरमाई। जानते हैं इतनी मुद्दत में इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी को मुकम्मल फरमाया। कामिल 25 साल में इस तसनीफ को पाए तकमील तक पहुंचाया है। इमाम मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल मुख्तसर फिल फिक़्ह 20 साल के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह इनकी तसनीफ लतीफ सहीह मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ के बाद पूरी हुई जमीन में सबसे आला व औला किताब, बल्कि जौदत वज़्न और हुस्न तरतीब के लिहाज से देखे तो बुखारी से भी अफजल किताब है। उस सहीह मुस्लिम को इमाम बुखारी आलम क्या है, शर्क में मकबूल, गर्ब में मकबूल, जनूब में मकबूल, शिमाल में मकबूल, पूरी दुनिया में सहीह मुस्लिम मकबूल। कितने सालों में तसनीफ को पाए तकमील तक पहुंचाया? कामिल 15 साल में इमाम मुस्लिम ने इस तसनीफ को पाए तकमील तक पहुंचाया है। फिक़्ह की बड़ी मशहूर किताब अल मबसूत लिस्सरखसी, इमाम सरखसी ने इस किताब को मबसूत सरखसी को कामिल 15 साल में पाए तकमील तक पहुंचाया है। इतने बड़े बड़े दिग्गज आलिम, बहरुल उलूम, नहरुल उलूम, जबल शामिख हैं, इल्म फज़्ल थे, मगर किसी को 15 साल लग रहे हैं, किसी को 20 साल लग रहे हैं, किसी को 35 साल लग रहे हैं, किसी को 40 साल लग रहे हैं। मगर आज के हालात देखिए, मैं तो कहता हूँ ये इल्म से नाशनाई की बुनियाद पर, शरीयत से नाशनाई की बुनियाद पर, तारीख से नाशनाई की बुनियाद पर ये एतराज़ात उबलने लगते हैं। अगर हमारे सामने ये हकीकतें होती, तारीख के ये चश्म कुशा वाक़यात अगर हमारी निगाहों के सामने होते तो कभी हम इस तरह के एतराज़ात करने की कोशिश नहीं करते।